کسی نے مجھے ٹوکا دیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ مجھ پر رائفلوں کی نالیں اٹھی ہوئی تھی۔ وہ مخصوص وردی میں ملبوس 7-8 افراد تھے۔ وردی سے مجھے یہ پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ وہ ڈیتھ سرکل کے اہلکار تھے، اور ان کے ہمراہ ایک اور شخص کو دیکھ کر میں بری طرح سناٹے میں آ گیا۔ سینے میں سانسیں اٹکنے لگیں۔ وہ ہوٹل 5 سٹار کا مینیجر موہن داس تھا۔ یہی ہے جناب وہ اشوک نامی ویٹر۔ اس نے ایک نسبتاً لمبے تڑنگے اہلکار سے جوش آمیز غیر سے کہا۔ بس پھر کیا تھا، آنن فانن مجھے دبوچ لیا گیا اور میری تلاشی لی گئی۔ اس کے بعد وہ مجھے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے اسٹیشن کی عمارت سے باہر لے آئے۔ سامنے ایک لمبی اور چوڑے ٹائروں والی تیز رفتار آرمی کی جیپ کھڑی تھی۔ مجھے اس میں سوار کر دیا گیا اور سب کے سوار ہونے کے بعد جیپ ایک جھٹکے سے روانہ ہو گئی۔ میں اپنی ذرا سی غفلت کے باعث ڈیتھ سرکل کے خونخوار ایجنٹوں کے شکنجے میں پھنس چکا تھا۔ تن بتقدیر ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تھا۔ سفر خاموشی سے جاری تھا۔ ان لوگوں نے مجھے بولنے سے سختی کے ساتھ منع کر رکھا تھا۔ خود ان میں سے کسی نے بھی مجھ سے مخاطب ہونے کی کوشش نہ کی۔ موہن داس کی چشمدید گواہی کے بعد اسے فارغ کر کے روانہ کر دیا گیا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ راتوں رات غالباً دشمنوں کو میرے آپریشن کی رپورٹ مل گئی تھی، اور انہوں نے فوراً ہوٹل 5 سٹار کے عملے سے رابطہ کر کے اسی وقت میری تلاش شروع کر دی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ان لوگوں کا تعلق خلیج کھمبات کے 03 زون سے تھا، اور یہ مجھے وہیں لے جا رہے تھے۔ اس دوران وائرلیس سیٹ پر اس لمبے چوڑے اہلکار نے میری گرفتاری کی رپورٹ دے دی تھی، اور اس کے لبوں پر یہ سن کر اس پاکستانی جاسوس کو ہم نے گرفت میں لے لیا ہے اور اب زون 03 کی طرف لایا جا رہا ہے۔ مجھے اپنے اندازے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ جیپ آندھی طوفان کی رفتار سے دوڑی جا رہی تھی۔ گھنٹے ڈیڑھ بعد فضا میں مرطوب ہواؤں کی مہک رچی ہوئی محسوس ہونے لگی، گویا جیپ اب ساحلی راستے پر رواں دواں تھی۔ دائیں بائیں ساحلی جنگلات پھیلے ہوئے تھے۔ سڑک اب ویران ہو چکی تھی، یعنی دیگر ٹریفک وغیرہ کی آوک جاوک بالکل معدوم ہو کر رہ گئی۔ مزید 10-15 منٹ بعد میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی۔ میرے دونوں ہاتھ اس سے پہلے ہی پشت کی سمت موڑ کر آہنی ہتھکڑی سے باندھ دیے گئے تھے۔ پھر لگ بھگ کوئی 15-20 منٹ بعد جیپ نے ایک موڑ کاٹا اور ہچکولے کھاتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ میں اب تک خود کو بحواس کر چکا تھا اور تیزی سے اس خطرناک اور سنگین تر نازک صورتحال سے نمٹنے کی تدبیر سوچ رہا تھا جو سر دست ناممکن ہی نظر آ رہی تھی۔ مزید 10 منٹ تک ناہموار راستے پر سفر جاری رہا اور پھر جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ مجھے گھسیٹ کر بے دردی کے ساتھ نیچے اتارا گیا۔ میرا خیال تھا کہ اب میری آنکھوں سے پٹی اتار دی جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ مجھے 2 اہلکاروں نے بازوؤں سے دبوچ رکھا تھا۔ وہ لوگ مجھ سے کچھ زیادہ ہی خوفزدہ اور چٹکے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ حالانکہ میرے دونوں ہاتھ آہنی جکڑ بند میں بندھے ہوئے تھے، مگر باوجود اس کے مجھے دونوں بازوؤں سے جکڑ کر رکھا گیا تھا اور بے دردی کے ساتھ گھسیٹتے لے جا رہے تھے۔ مختلف جگہوں راہداریوں پر چکنے فرش سے ہوتے ہوئے بالآخر مجھے ایک کمرے میں دھکیل دیا گیا۔ پھر دوسرے لمحے باری برکم دروازے کے زور سے بند ہونے کی دھماکے دار آواز گونجی۔ دروازہ شاید فولادی تھا۔ انہوں نے میری آنکھوں سے پٹی بھی نہیں اتاری تھی۔ میں نے رسن بستہ ہونے کے باوجود دیوار سے پشت لگائے ہوئے کمرے کی دیوار کو چھو کر اندازہ لگایا تھا کہ یہ کمرہ زیادہ بڑا نہ تھا۔ میں تھک ہار کر دیوار سے پشت ٹکائے بیٹھ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں اس بار بہت برا پھنسا ہوں، تاہم میرے حوصلوں کے بادبان اب بھی بلند تھے۔ میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ ذرا بھی موقع ملا تو میں دشمنوں کی اس آخری عمارت 03 کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ سیکرٹ فائل کی معلومات کے مطابق یہاں کی کمانڈ میجر چوپڑا کے سپرد تھی، اور میرے خیال میں نصف سے زیادہ ڈیتھ سرکل کا شیرازہ بکھرنے کے بعد اب میجر چوپڑا ہی باقی بچا تھا۔ میں تصور میں راہ کے سربراہ افسروں کو اس ناقابل تلافی نقصان کے باعث جنجلاہٹ کے مارے اپنے ہی بال نوچتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ لوگ زخم کھائے کتے بن چکے تھے اور مجھے بمبوڑنے کے لیے دانت نکوسے بے چین تھے۔ بمشکل ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے کے کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی باری بوٹوں کی دمک کمرے کے مسدود ماحول میں گونجی۔ پھر کسی نے میرے قریب آ کر میری آنکھوں سے پٹی اتار دی۔ تیز سیلابی لائٹ میرے چہرے پر پڑی۔ میری آنکھیں چندیا گئیں، پھر لائٹ نارمل ہو گئی۔ میں نے جلدی اپنی آنکھیں جھپکتے ہوئے انہیں دیکھنے کے قابل بنایا تو سامنے 5 دشمن ایجنٹوں کو کھڑے پایا۔ ان کے درمیان میں ایک ٹھگنے اور مضبوط تن و توش والا کرخت اور سیاہ شخص بھی میجروں والی وردی پہنے کھڑا ہونٹ پیچھے مجھے خونخوار نظروں سے گورے جا رہا تھا۔ میں نے اپنے چہرے پر عام انسانوں جیسا خوف اور پریشانی کے تاثرات طاری کر لیے، اور پھر میں نے اسی لہجے میں کہا، مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ میں نے آخر کون سا جرم کیا ہے؟ وہ سیارو میجر جو بلا شبہ 03 کا میجر چوپڑا ہی تھا، غراہٹ سے مشابہ آواز میں میری طرف گورتے ہوئے بولا،
अनजान बनकर तुम क्या साबित करना चाहते हो कैप्टन इमरान? उसके लबों से अपना नाम सुनकर बावजूद कोशिश के मैं अपने चेहरे पर फितरी रद्द-ए-अमल के तहत बेख्तियार उभरने वाले चौंकने के तासुरात को छुपा नहीं सका था। क्यों चौंक गए ना? मेजर चोपड़ा इस बार इस्तेहजा आमेज नफरत से अपने स्याह होंठ सुकेड़ कर बोला। तुम लोगों को फिर भी गलत फहमी हुई है। मैंने हिम्मत ना हारी और अपने मौकफ पर डटा रहा। कोई फायदा नहीं कैप्टन इमरान, कोई फायदा नहीं। मेजर चोपड़ा ने ड्रामाई अंदाज में अपना बैल जैसा सर नफी में हिलाते हुए कहा, मोहनदास तुम्हें कर्नल गुप्ता को कत्ल करते और वहां तबाही और बर्बादी मचाते हुए देख चुका है, बल्कि वही नहीं, वहां मौजूद दीगर वेटर्स ने भी ये सब देखा था। अब तुम्हारे लिए बेहतरी इसी में है कि हमारे सवालों के दुरुस्त जवाबात देकर अपनी मौत आसान बना लो। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे ये सब करने के लिए एक शख्स ने कहा था। मैंने गोल मोल जवाब दिया। कौन से शख्स ने? मैं उसे नहीं जानता। मेजर चोपड़ा ने मेरे चेहरे पर बदस्तूर अपनी घूरती हुई नजरें मरकूज रखते हुए एक सनसनीखेज हंकारी भरी, फिर अपने एक एहलकार से तोहमखाना मुखातिब होकर बोला, चीफ साहिब से राब्ता करके सूरत हाल बताओ इसी वक्त। यस सर, एहलकार ने मुअद्दबाना मुस्तैदी से कहा और उल्टे कदमों कमरे से निकल गया। मैं मेजर चोपड़ा के चीफ साहिब वाले जुमले पर जरा ठिठका था और सोचने लगा क्या ये मेजर चोपड़ा नहीं था, मगर मैं इस बात को जुटला नहीं सकता था क्योंकि मेजर चोपड़ा का नाम उसके सीने पर लगी नेम प्लेट पर दर्ज था। तो फिर इनका और कौन चीफ था? कहीं ये वो चीफ तो ना था जो रा की गोद में बैठा वो विंग था जिसने डेथ सर्कल तश्कील दी थी। कई मिनट आसाब शिकन खामोशी की नजर हो गए। वो एहलकार दोबारा लौटा और मेजर चोपड़ा से मुअद्दबाना बोला, सर चीफ ने यहाँ के लिए ओके का सिग्नल दे दिया है। मैं दक से रह गया। क्या उनके चीफ ने बिला ताखीर मेरी मौत के अहकामात तो जारी नहीं कर दिए? मैंने धड़कते दिल के साथ सोचा। मैं मौत से नहीं डरता था, मगर अपना मिशन पूरा किए बगैर मैं अभी मरना नहीं चाहता था। मैंने देखा मेजर चोपड़ा के चेहरे पर एक शफाक मुस्कुराहट उभरी। फिर उसने बारोब लहजे में कहा, इसे रेड चैम्बर में मुंतकिल कर दो। ये कहकर वो कमरे से निकलता चला गया। उसका हुक्म पाते ही दो एहलकार मेरी तरफ बढ़े और मुझे धकेलते हुए कमरे से बाहर एक चौड़ी राहदारी में ले गए। फिर मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते हुए वो मुझे एक ऐसे कमरे में लिए दाखिल हुए जिसे देखकर बेख्तियार मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। उस कमरे की वज़ाकता से साफ जाहिर हो रहा था कि ये तशद्दुद खाना था। इस टार्चर सेल में लाने का मकसद यकीनन मुझे हलाक करना नहीं, बल्कि तशद्दुद के जरिए मेरा मुंह खुलवाना था, मगर मेरे पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी ना था। ये लोग अब यही समझे हुए थे कि मैं पूरे नेटवर्क के तहत यहाँ वारिद हुआ हूँ और मेरे मजीद साथी भी मेरे इस काज में शामिल थे। उन्हें क्या मालूम था कि मैं तो अपने तौर पर महज जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार और तने तनहा उनकी अपने मुल्क के खिलाफ साजिशों को मिलिया मेट करने आया था। तुम्हारे और कितने साथी तुम्हारे साथ इस मिशन में शामिल हैं? वो सब इस वक्त कहाँ हैं? मेजर चोपड़ा ने मेरी तरफ घूरती नजरों से देखते हुए पूछा। मैंने बताया ना कि मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो एक शख्स के कहने पर भारी मुआवजे के लालच में ये काम कर रहा था। मैंने वही जवाब दोहराया। सुल्तान जहांजेब राजा पटेल को तुमने ही हलाक किया था ना? नहीं, मैंने नफी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। अच्छा, और सतियापाल? मैं उसे भी नहीं जानता। तो गोया तुम ऐसे जुबान नहीं खोलोगे। मेजर चोपड़ा मेरी तरफ घूरते हुए सनसनीखेज लहजे में बोला। इसके बाद उसने वहां मौजूद अपने चंद एहलकारों को मखसूस इशारा किया। वो चाबी भरे खिलौनों की तरह हरकत में आए और मुझे कमरे के वस्त में जमीन पर गड़े एक आहनी स्टूल पर बिठा दिया गया। मेरे दोनों हाथ पहले ही पुश्त पर बंधे हुए थे। अब उन्होंने मेरी दोनों टांगे भी आयरन स्टूल की अकलौती मगर फौलादी टांग पर नस्ब आहनी कुंडों में फंसा कर बांध दी जो जमीन में गड़ा हुआ था। छत पर एन मेरे सर के ऊपर एक कंटोप जोल रहा था। कमरे के एक कोने में नस्ब एक पैनल के सामने कुर्सी पर बैठे हुए एक एहलकार ने बर्तनों से छेड़छाड़ शुरू कर दी। अब धीरे धीरे नीचे आने लगा और फिर मेरे सर के एन करीब आकर रुक गया। इसके बाद कमरे की लाइट ऑफ कर दी गई, मगर लाइट ऑफ होते ही कंटोप के अंदर नस्ब फ्लड लाइट रोशन हो गई। ये सुर्ख रंग की रोशनी थी जिससे मेरा पूरा वजूद नहा गया था, मगर इसके साथ ही बाकी मंजर मेरी आंखों से ओझल हो चुका था। चंद सानिये ही बीते होंगे कि सुर्ख रंग की फ्लड लाइट की हिद्दत बढ़ने लगी और फिर दूसरे लम्हे एक लर्जा देने वाले ख्याल से मैं कांप उठा। ये सुर्ख लाइट बतदरीज एक तेज तपश में तब्दील होती जा रही थी, बिल्कुल इस तरह जैसे ओवन में कोई सालम चरगा बुना जाए। मेरा पूरा वजूद पसीने में नहा गया। जरा ही देर बाद वो भी तेज तपश के बायस खुश्क हो गया। अब वो तपश मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी। मुझे अपने वजूद की खाल खिंचती हुई महसूस होने लगी। दम घुटने लगा
तपिश इस कदर बढ़ गई थी कि मुझे अपना पूरा वजूद सुलगता हुआ महसूस होने लगा, जैसे मुझे सुलगते हुए कोयलों पर रख दिया गया हो। मैं इस जहन्नमी तपिश के बायस हलक के बल चीखने लगा। मारे अजियत के मेरा पूरा वजूद लरजने लगा। हमारे सवालों के दुरुस्त जवाबात दे दो, वरना तुम्हारा पूरा वजूद जल कर कोयला हो जाएगा। अचानक खंजीर सिफ्त मेजर चोपड़ा की गजब आलूद आवाज उभरी। मैं कुछ नहीं जानता। तुम लोग बिला वजह मुझ पर जुल्म कर रहे हो। मैं बमुश्किल अपने रुए रुए में सरायत की हुई अजियत नाकी को गोया दांतों तले बीचे हुए बमुश्किल बोला। ठीक है, तो फिर इसी तरह अपने जलने का तमाशा देखते रहो। मेजर चोपड़ा की जलाई हुई मगर सफाक आवाज उभरी। दफातन तपिश कम होती चली गई। अगले ही लम्हे मुझ पर बाल्टी भरकर पानी फेंका गया। जलते वजूद पर यकदम इस कदर सर्द पानी ने मेरी अजियत को कई गुना बढ़ा दिया और बेख्तियार मेरे हलक से एक बार फिर लर्जा खेज चीख उभरी। मुझे अपनी रूह फना होती हुई महसूस हुई। फिर इस दूसरी और बेपनाह अजियत के नाकाबिले बर्दाश्त होते ही मेरा सर एक तरफ को ढलक गया था। दोबारा होश आया तो सब कुछ वैसे ही था। मैं उसी तरह स्टूल पर सन बस्ता बैठा था, अलबत्ता कमरे में अब रोशनी हो चुकी थी। कंटोप को दोबारा छत की तरफ खींच दिया गया था। मैं बुरी तरह निडाल हो चुका था। मेरे पूरे वजूद में आबले पड़ चुके थे। मेरे वजूद की ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ से शदीद ठेसें नहीं उठ रही थी। पूरा जिस्म अंगारा बना दहक रहा था। मैंने नीम व आंखों से सामने देखा। एक एहलकार ने अपने हाथ में मीख खींचने वाला जमूर पकड़ा हुआ था। वो मेरे करीब आकर पुश्त के पीछे खड़ा हो गया। मुझ में तो अब चीखने की तो क्या, कुछ बोलने की भी शक्कत ना रही थी। मुझे मजीद 2 एहलकारों ने थामे रखा था ताकि मैं स्टूल से गिर न पड़ूं। मेरे अकब में अपना रुख मोड़ने वाले एक मज़कूरा एहलकार ने मेरे दाएं हाथ की एक उंगली पकड़ी। जमूर से उसका नाखून पकड़कर जोर से खींचा तो जैसे मेरी रूह तक अजियत के मारे फना हो गई। इस अजियत की नाकाबिले बर्दाश्त लहर ने मुझे अदमुआ होने के बावजूद करबनाक चीख बुलंद करने पर मजबूर कर डाला। अब भी वक्त है, हमें सच सच अपने और अपने साथियों के बारे में बता दो, वरना इसी तरह बारी बारी तुम्हारे हाथों पैरों के सब नाखून खींच लिए जाएंगे। मेजर चोपड़ा की करख्त और सफाक आवाज मेरी जख्मी समातों से टकराई। पानी पानी, मैंने लरजीदा लबों से बमुश्किल कहा। पानी का एक पूरा जग मेरे कपकपाते होंठों से लगा दिया गया। अभी मैंने चंद ही घूंट पिए थे कि जग मेरे प्यासे होंठों से हटा दिया गया। हाँ, अब बोलो। मेजर चोपड़ा की दोबारा पाटदार आवाज उभरी। मुझे कुछ सोचने का मौका दो। मैं बमुश्किल इतना कहकर बुरी तरह हाँफने लगा। मेजर चोपड़ा मेरी बात पर कुछ सोचने लगा। इसके बाद उसने अपने एहलकारों से कुछ कहा था जो मैं ना समझ सका। ताहम इतना जरूर हुआ कि मुझे इस अजियत गाह से निकालकर दोबारा उस कमरे में लाकर फेंका गया जहां पहले से रखा गया था। मेरे दोनों हाथ अब भी पुश्त पर बंधे हुए थे, अलबत्ता मेरी दोनों टांगे आजाद थी और इस बार मेरी आंखों पे पट्टी भी नहीं बांधी गई थी। मेरी नाखून खींची हुई उंगली से खून रिसने के बाद खुद ही सूख कर रुक चुका था। मैं कमरे में तन्हा था। मैं अपने मुख्तल हवासों को मुजतमा करते हुए उनकी कैद से आजाद होने के बारे में सोचने लगा। सबसे पहले मैंने कमरे का बगौर जायजा लिया। छत की सम दीवार पर सिर्फ एक आहनी गोलों वाला रोशनदान था जो बहुत बुलंद था। मैं सोच रहा था कि किस तरह मेरे दोनों हाथ आजाद हो जाएं तो मैं आजादी के लिए कुछ हाथ पांव हिला सकूं। मेरा पूरा वजूद दुखन के बायस दर्द कर रहा था। दाएं हाथ की जख्मी उंगली शायद सूज चुकी थी। मैं सबसे पहले अपने बने हुए हाथों की वो आनी हथकड़ी खोलने का सबब तलाश कर रहा था, मगर कोई ऐसी तरकीब जहन में आ ही नहीं रही थी। रस्सी होती तो कुछ न कुछ सोचा जा सकता था, मगर आनी हथकड़ी को बगैर चाबी के खोलना या काटना नामुमकिन था। मेजर चोपड़ा शायद मुझ पर इंसानियत सोज तशद्दुद करने के बाद जरा सस्ता रहा था। मुझे बहुत थोड़ी मोहलत मिली थी। 15-20 मिनट बाद दरवाजा खुला। मेजर चोपड़ा अपने चंद मुसल्लह एहलकारों के साथ एक बार फिर मेरे सामने मौजूद था। हाँ, अब सीधी तरह हमारे सवालों के जवाब देते चले जाओ, वरना आग में जलने के लिए तैयार हो जाओ, वो खौफनाक लहजे में बोला। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। जिस्मानी तदाबीर की तमाम राहें मसदूद थी, मगर जहन और दिमाग तो आजाद था। अब अकल के सहारे ही मफर की राह सुझाई दे सकती थी। मेरा नाम कैप्टन इमरान है। बिलाखिर मैंने जहन में उभरने वाली एक फौरी प्लानिंग के तहत बतदरीज थोड़ा झूठ बोलना गवारा किया ताकि मेरी तरकीब बारावर साबित हो सके। मेरा जवाब सुनकर यकदम मेजर चोपड़ा की आंखों में चमक उभरी थी। सुल्तान जहांजेब और राजा पटेल को तुमने ही मौत के घाट उतारा था। हाँ, और सत्यापाल, उसे भी मैंने ही हलाक किया था। कर्नल गुप्ता वगैरह को हलाक करने और तबाही मचाने के बाद तुमने ही वहाँ से सीक्रेट फाइल उड़ाई। हाँ, वो फाइल कहाँ है? अपने साथियों के हवाले कर दी है। तुम्हारे साथ इस मिशन पर और कितने सरफरोश आए हैं? 5। सच बोलने के बाद मैं जरा द्रोह गोई से काम लेना चाहता था। वो कहाँ है?
मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद थे। अपने साथियों के नाम और जगहों के पते बताओ। 3 हलाक हो चुके हैं, बाकी 2 बचे हैं। वो शंकर और राजकुमार के नाम से यहाँ मुकीम है। उन जगहों के नाम बताओ। शंकर इस वक्त कहाँ है मैं नहीं जानता, अलबत्ता राजकुमार खलीज खंबात के साली इलाके के एक घर में मौजूद था, मगर मेरा ख्याल है कि उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं। क्यों? इसलिए कि खतरे की सूरत में उसने जगह बदलने का फैसला कर लिया था। राजकुमार, हाँ वही तुम लोगों के लिए ज्यादा अहम हो सकता है, क्योंकि उसने वेटर के बेस में तुम्हारे डेथ सर्कल के जोन 02 से रा के मुतालिक कई अहम फाइलें उड़ाई हैं। वो मेरे हवाले करना चाहता था। मेजर चोपड़ा की आंखें फैल गईं। मेरे मुंह से डेथ सर्कल के जोन 2 और रा का जिक्र सुनकर उसकी आंखों पर गहरी तशवीश के साए नमूदार हो गए थे। राजकुमार से आखिरकार तुम्हारे राब्ते का कोई तरीका तो होगा। उसने मुझसे थोड़े दिनों बाद होटल 5 स्टार में राब्ता करना था। मैंने आखिरी पत्ता फेंका। ये मेरी तुरप चाल थी और मैं महसूस कर रहा था कि मेरे झूठ में थोड़ी सी सच की आमेज़श ने उसे मेरे तारे अनकबूत में जकड़ लिया है। यही सबब था कि उसने ऐन मेरी तवक्को के मुताबिक कहा, गोया अगर तुम्हें होटल 5 स्टार ले जाया जाए तो तुम्हारा साथी राजकुमार तुमसे टेलीफोनिक राब्ता करेगा या बिलमुसाफा मुलाकात पहले टेलीफोनिक राब्ता ही करने की कोशिश करेगा। मेजर चोपड़ा ने एक पुरसोच हंकारी भरी और चंद सानिये के लिए किसी सोच में मुस्तगरक हो गया। मेरा दिल कामयाबी की उम्मीद से बेतरा धड़कने लगा। इसके बाद वो लौट गया। फौलादी दरवाजा गूंजदार दमक के साथ बंद कर दिया गया। मैं समझ रहा था कि मेजर चोपड़ा मेरी बताई हुई बातों के तनाजुर में आइंदा के लिए कोई लाहे अमल तैयार करना चाहता है। पूरा एक दिन गुजर गया। इस दौरान सिर्फ एक बार मुझे खाने पीने को थोड़ा बहुत दिया गया था, मगर मेरे हाथों को फिर भी आनी हथकड़ियों से आजाद नहीं किया गया था, बल्कि एक एहलकार ने मेरे सामने बैठकर नवाले तोड़कर मेरे मुंह में खुद ही ठूसे थे। अब तो मुझ पर मजीद जिंजलाहट तारी हो गई। ये कमबख्त आनी हथकड़ियां तो गोया मेरे वजूद का हिस्सा बन गई थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल माजूर ही होकर रह गया था। दूसरे दिन सुबह ही मेजर चोपड़ा अपने मुसल्लह एहलकारों के साथ आया और मुझसे बोला, तुम्हारी दी हुई मालूमात से हमने अंदाजा लगाया है कि तुम अब हिम्मत हार चुके हो और ऐसे दुश्मन को हम अपना दुश्मन नहीं समझते। अगर तुमने अपने दूसरे साथी राजकुमार को गिरफ्तार करवाने में सच्चे दिल से हमारी मदद की तो हमारा वादा है कि न सिर्फ तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी बल्कि तुम्हें वापस अपने वतन भी जाने की इजाजत दे दी जाएगी। वो मेरे साथ मक्काराना चाल चल रहा था और मैं उसकी चाल में आना चाहता था, लिहाजा मैं यकदम खुश होकर बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सच, मगर मैं अब वापस अपने वतन नहीं जाना चाहता। मैंने आखिर में अपने लहजे को मायूस बनाते हुए कहा। क्यों? मेजर चोपड़ा ने अपनी बवें सुकेड़ कर मुझसे पूछा। इसलिए कि अब वहाँ मेरे रहने का कोई जवाज बाकी नहीं रहा। अगर मैं नाकाम लौटा तो मैंने यहाँ दानिस्ता अपना जुमला अधूरा छोड़कर उससे कहा, आगे तुम खुद समझ जाओ। तुम्हारी बात का मतलब मैं बखूबी समझ रहा हूँ। मेजर चोपड़ा ने मुझे असर पजीरी में लाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम हमारे लिए काम करने की हामी भरो तो तुम्हारे लिए यहाँ न सिर्फ सहूलतें फराहम की जाएंगी बल्कि तुम यहाँ अपनी नए सिरे से खुशगवार जिंदगी भी बसर कर सकते हो।